कि आप में से सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोग इधर आए हैं। It's good to see good and beautiful faces. अच्छे और सुंदर चेहरों को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। And we pray that God is going to speak to us. हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। We have analysts with us and from Canada. हमारे बीच में एनालिस्ट हैं जो कनाडा से आई हुई हैं। Many of you have never seen her. आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा This is होगा। her first time. इनका ये पहली बार है कि ये यहाँ पर आई हैं। But we have seen her father several times. लेकिन इनके पिता को हमने कई बार देखा Her है father has come here. He had taught and ministered here several times. और उनके पिता यहाँ पर आए हैं, कई बार सिखाया है, यहाँ पर उन्होंने सेवा की है। A wonderful man of God, very humble and a great teacher of the word. परमेश्वर के बड़े ही अच्छे दास हैं, बड़े शिक्षक हैं और बड़े ही अच्छे नम्र व्यक्ति हैं। परमेश्वर के वचन के बड़े अच्छे शिक्षक हैं। So he came first, and several times now he has sent his daughter to be here with us for a few weeks. वो पहले कई बार हमारे बीच में आ चुके हैं और अब उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है कुछ समय के लिए हमारे बीच में। So it's a privilege to have her with us, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में है। and thank you for coming. हम उनको धन्यवाद देते हैं उनके यहाँ आने के लिए। Would you like to speak? Many they don't like to speak. No? Okay. All right. We'll let you go this time. Analyst, we'll let you go this time, but next time. तो इस बार तो एनालिस्ट को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार जब आएंगी तो Don't have to वो worry ज़रूर about बोलेंगी। that. If you have your Bible, you can open your Bible to Psalm chapter 23. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। If you're from a Christian family, or if you've been in Jesus for a long time, this is a very favorite and very like easy Bible chapter that everybody looks to. आप भजन संहिता 23 अध्याय हमारे साथ निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत समय से मसीही विश्वासी हैं तो ये एक सुंदर अध्याय है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम याद करते हैं। Also, while you are opening your Bible, और साथ ही जब आप अपनी बाइबल खोल रहे हैं, I want to congratulate those who took baptism last Sunday. It was last Saturday. हम उन लोगों को बधाई देते हैं जिन्होंने इस शनिवार से पिछले शनिवार को बपतिस्मा लिया Rohit था। was one. We congratulate you. Praise God for you. And anyone else? Who were the 4 people that took baptisms? और रोहित यहाँ पर है जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, वो हमारे बीच में है। और You took the baptism. Okay, that's wonderful. मनी ने भी Wonderful. And बपतिस्मा लिया था। congratulations. उनको हम बधाई Congratulations. देते हैं। Okay, wonderful. Praise the Lord for you. So let's open the Bible to Psalm chapter 23, which is a very popular chapter. परमेश्वर की प्रशंसा हो इन लोगों के लिए। अब आइए हम भजन संहिता 23 अध्याय निकालते हैं जो बड़ा ही एक प्रसिद्ध अध्याय है। It says, "The Lord is my shepherd; I shall not want. यहाँ लिखा है एक वचन में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake." वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। This is a chapter, this is a Bible chapter that encourages people to put their trust upon God. ये बाइबल का वो अध्याय है जो लोगों को उत्साहित करता है कि वे परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें। Not trusting upon ourselves, but trusting upon God. खुद के ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। Many times we want to be the leader, we want to be in control of our life ourselves. बहुत बार अपने जीवनों के स्वामी और चलाने वाले हम खुद ही बनना चाहते हैं। We want to be in control, we want
to dictate our term. We want to lead our way to our destination. हम चाहते हैं कि सारी बातों का नियंत्रण हमारे हाथों में हो और जो हमने फैसला ले रखा है उसी में हम अपने हिसाब से चलें। And there are some people, those who want to depict, they want to say that I know it all. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार ये कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, ऐसे ही होना चाहिए। But this is written by King David. लेकिन ये जो अध्याय है वो राजा दाऊद ने लिखा है। Who was King David? राजा दाऊद था कौन? Who has written this Bible, this chapter? जिसने इस अध्याय को लिखा? King David was the king over a nation called Israel. राजा दाऊद एक ऐसे देश का राजा था जिस देश का नाम इज़राइल था। A nation who did not have a land, did not have any place. एक ऐसा देश जिनके पास अपनी भूमि नहीं, कोई जगह नहीं। But God, the creator of heavens and the earth, told a group of people called Israelite that God is going to give them their own land and their own houses and their own field and their own king. लेकिन परमेश्वर ने इन इज़राइली लोगों के एक समूह को ये कहा कि परमेश्वर उन्हें खुद की जगह, खुद का देश और खुद का एक राजा देगा। This group of people who were nobody, all of a sudden they become established and became somebody because God had given them an identity. और ये लोगों का जो झुंड था, एक ऐसा समय आता है कि ये एक पहचान बन जाते हैं, एक जगह में रहने लग जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें एक पहचान दे दी। This group of people, those who are called Israelites, it did not take a very long time to be very influenced from the place where they were slaves. और जिन जगह में ये लोग पहले गुलामी में रहते थे, वहां से निकलकर आकर प्रसिद्ध होने में इनको ज्यादा समय लगा नहीं। Can you imagine a person who was a slave, who was been dictated terms in all their lives, and he becomes the king, they become the leader? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे लोग या ऐसा कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर गुलामी में रहा हो, जिसको हमेशा बताया जाता हो ये करना है, और आने वाले समय में वही लोग शासन करने लग जाते हैं, राजा बन जाते हैं। Israel become a nation. इज़राइल एक देश बन जाता है। And that was a terror. They became so powerful. The entire world, they started getting afraid of them. और ये देश इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है कि सारे दुनिया के लोग इनसे डरने लग जाते हैं। And I'm talking about a history of more than 500 years ago. मैं आपको 3500 साल पहले की आपको इतिहास की कहानी बता रहा हूँ। And more than that. उससे भी ज्यादा। So these people became very influential. तो ये लोग जो थे, इनका बहुत ही ज्यादा दबदबा था समाज Very में। powerful. बड़े सामर्थी थे। At a point, and when people heard their name, people were terrorized. जब लोग इनका नाम सुनते थे तो डर जाते थे। They become influential in every areas of their lives. इजरायली लोग अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली बन गए। Not only that time, but even today, they are one of the very influential country. सिर्फ उसी समय नहीं, लेकिन आज के दिनों में भी इजराइल एक बहुत ही प्रभावशाली देश है। If you ever try to find them in geography, अगर आप भूगोल में या नक्शे में अगर उस देश को ढूंढने की कोशिश if you करें, want to take the world map अगर आप दुनिया का जो मानचित्र है अगर आप and उसे लें try to look for that country called Israel, और इजराइल नाम के देश को अगर आप ढूंढने की कोशिश करें, such a tiny country इतना छोटा सा देश है, is even smaller than smaller than our Delhi, हमारी दिल्ली से भी छोटा देश है, and population is 1/3 of Delhi's population. जितनी दिल्ली की आबादी है उससे 1/3 आबादी वहां लोग रहते Now हैं। that small group of people अब एक इतना छोटा सा झुंड even today dictate their term to the world. आज भी लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं। Very powerful. बड़े ही शक्तिशाली लोग हैं। There are nations around Israel. They have been surrounded. It's surrounded by many Islamic nations. इजराइल एक ऐसा देश है जो बहुत सारे मुस्लिम जो देश हैं उनसे घिरा हुआ है। It's surrounded by enemies. बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। They are enemy countries. उनके जो दुश्मन देश है उन देशों से घिरा हुआ है। Very powerful. बड़े शक्तिशाली लोग, Very huge countries. बहुत बड़े बड़े देश, But this small group of people लेकिन ये छोटे से समूह के लोग are a terror even to the nations altogether. आसपास के सभी देशों के लिए वो एक खतरा है। Now we are talking about the
king of this nation that time who was very influential. अब हम बात कर रहे हैं उसी देश के राजा के बारे में जो उस समय बड़ा ही प्रभावशाली था। This man he is the contributor to the bringing the nation to be very powerful. और इस व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया है कि ये देश बड़ा शक्तिशाली बन जाए। One of the best king. सबसे अच्छे राजाओं में से एक राजा, His name was called David. उसका नाम था दाऊद। David was a shepherd boy. दाऊद एक चरवाहा था, गडरिया लड़का था। And the God appointed him that he can be a king. और परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया ताकि वो एक राजा बने, King of this nation. इस देश का राजा बने। Very powerful, बड़ा शक्तिशाली, very influential, बड़ा प्रभावशाली, very intelligent, बड़ा बुद्धिमान, extremely talented. बहुत ही ज्यादा कौशल से भरा हुआ। He knew it all. उसे सब पता था। This kind of person became the king. इस तरह का एक व्यक्ति राजा बनता है। And now he is, when this person becomes a king of this nation, अब ये व्यक्ति जब इस देश का राजा बनता है, which is the very powerful nation in the world, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में से है, it's very natural that the pride will come to his head. ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि इस व्यक्ति के दिमाग में घमंड भर जाए। Now, like King Alexander, he had an opportunity to say, I am the emperor of the world. उदाहरण के तौर पर जो राजा जो अलेक्जेंडर था, वो ऐसा कह सकता था, ऐसा उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया का शासक हूँ। But this is not the story like that. लेकिन इस राजा की कहानी ऐसी नहीं है। This leader who is very influential, ये जो राजा है, ये जो अगुवा है, बड़ा ही प्रभावशाली जो है, people were terrorized by his name. लोग उसके नाम से ही डरते थे। Now he writes a small portion. अब वो एक छोटे से हिस्से को लिख रहा है। He writes a poem वो एक कविता लिख रहा है about his life अपने जीवन के बारे में, and about his future अपने भविष्य के बारे में, and about his lifestyle. उसका जीवन शैली के बारे में, And he writes here. और वो यहाँ लिखता है। Who is writing? कौन लिख रहा है? Very powerful guy. बड़ा ही शक्तिशाली व्यक्ति, Leader of one of the big nation, one of the influential, powerful nations. सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली देशों का राजा लिख रहा है। He is writing a poem about his life. वो अपने जीवन के बारे में एक कविता लिख रहा And है, he is writing, और वो लिख रहा है the Lord is my shepherd, कि प्रभु मेरा चरवाहा है, and I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं होगी। He is saying that God, it's my dependence is upon a God who is called Yahweh. वो कह रहा है कि मेरी निर्भरता उस परमेश्वर के ऊपर है जिसका नाम है यहोवे, यहोवा परमेश्वर। People like you and me think. आपके और मेरे जैसे लोग ये सोचते हैं। I would like to ask him. मैं उससे पूछना चाहूंगा, David, Mr. David, श्रीमान दाऊद, you are the king. तुम तो राजा हो, You are the one of the richest person in the entire world. पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से हो, You are one of the most influential person in the entire world. पूरे सारी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हो। You are the leader of the largest, of the strongest army in the world. और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना है उसके तुम अगुवे हो। Now you are saying that your dependence is upon someone else. और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी निर्भरता तो किसी दूसरे के ऊपर है। You look to the leadership of someone else. तुम किसी और की तरफ देखते हो कि तुम्हारी अगुवाई करे। I thought you are the leader. मुझे तो लगता था कि सबको तुम ही चलाते हो, But I did not know that you are a follower of someone लेकिन else. मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी किसी के पीछे चलते हो। He is writing, the Lord is my shepherd. वो लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Which Lord he is talking about? कौन से यहोवा, कौन से प्रभु की वो बात कर रहा है? If that powerful king is following another leader, अगर ऐसा सामर्थी राजा किसी दूसरे अगुवे के पीछे चल रहा है, that leader must have been very influential. तो वो जो अगुवा है जरूर उससे ज्यादा प्रभावशाली रहा Now, होगा। he is talking about another king who is the king of the universe. अब ये राजा एक ऐसे राजा के बारे में बात कर रहा है जो सारे ब्रह्मांड का राजा है। He is not only the king of the universe, he is the creator of the entire universe. वो सिर्फ ब्रह्मांड का राजा ही नहीं लेकिन ब्रह्मांड का रचने वाला भी है। And he is saying the Lord
is my shepherd. और वो कह रहा है उसके विषय में कि यहोवा प्रभु मेरा चरवाहा है। You know what does that mean? Lord means, आपको पता है ये प्रभु का अर्थ क्या है? Lord means I submit to his decision, to his will, to his direction. प्रभु का मतलब ये है कि उसके निर्देश के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से, उसके फैसले के हिसाब से मैं समर्पण करता हूँ। That means that person is the master and you are the subject. इसका मतलब है कि वो व्यक्ति तो स्वामी है और तुम उसके अधीनता में हो। So whatever he says or whatever term he dictates, you adhere to that. तो जो भी वो कहता है या जो भी वो फैसले लेता है, नियम बनाता है, तुमको उसे करना है। Lord means it's not your will but his will. प्रभु का मतलब ये है कि आपकी इच्छा नहीं लेकिन उसकी इच्छा It's चलेगी। not your plan but his plan. आपकी योजनाएं नहीं लेकिन उसकी योजनाएं। I thought, David, you are the king. मुझे तो लगता था दाऊद तुम ही राजा हो। David, I thought you were the Lord. मुझे लगा था दाऊद कि तुम ही प्रभु हो। You are the entire master of everything. सारी चीजों के प्रभु तुम ही हो। You didn't know, you don't need anything. तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। But David is saying, no. लेकिन दाऊद यहाँ कह रहा है नहीं, ऐसा There नहीं is है। one person that I submit to, एक व्यक्ति है जिसकी मैं अधीनता में हूँ and I call him master. और मैं उसे स्वामी कहता हूँ, I call him Lord. मैं उसे प्रभु कहता हूँ। I act according to his plan. उसकी योजना के हिसाब से मैं चलता हूँ। I submit to his direction. जो वो बताता है उसके अधीन में होता हूँ। I submit to his dictate. जो वो कहता है कि ऐसे करना है, मैं वैसा ही करता हूँ। I am a subject. मैं उसकी प्रजा हूँ, उसके अधीन हूँ। Now David is writing that the Lord is my shepherd. अब दाऊद यहाँ पर लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं होएगी। He leads me he makes me lie down in green pastures and he leads me beside the still waters. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता He है। restores my soul and he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Now David is talking about many things here. अब दाऊद यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा But है, we will talk about two things. लेकिन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। God's leadership in his life परमेश्वर की अगुवाई उसके जीवन में and God's guidance in his life. परमेश्वर का मार्गदर्शन उसके जीवन में। David is saying, God, you are my leader. दाऊद ये कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरा अगुवा है। I am following you wherever you take me. मैं तेरे पीछे चलूंगा जहां कहीं तू ले जाएगा। And wherever you guide me, that is how I'm going to do. और जैसा मार्गदर्शन तू करेगा वैसा ही मैं करूंगा। You know, I was telling an instance in the first service. पहली सभा में मैं एक उदाहरण बता रहा था। You know, last week, a couple of weeks back, we had a privilege of going to Orissa. और कुछ सप्ताह पहले हमें उड़ीसा जाने का मौका मिला। And Angelo and Diana, we traveled together with my wife. एंजेलो और धियाना हम लोग साथ में गए थे। I was remembering my first travel from Jharsuguda to Balangir. तो मुझे याद आया झारसुगड़ा से बलांगीर जब मैं पहली बार गया था। You know, when I went there first time, I landed in the airport. और आपको पता है जब मैं पहली बार वहां पर गया, मैं एयरपोर्ट में जब मैं उतरा, From the airport to the destination is about 4 hours or 4.5 hours. एयरपोर्ट से जहां हमें जाना था वहां 4.5 घंटे की दूरी है। And that time I did not know the way. और उस समय में मुझे रास्ता नहीं पता था। But somebody told me that someone is going to come to the airport and meet me at the airport. लेकिन किसी ने मुझे कहा कि कोई आएगा तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलेगा। And he is going to take me in his car. और उसने मुझे बताया कि वो ही मुझे अपनी कार में लेकर जाएगा। So the very first time I'm getting down at the airport. तो पहली बार मैं वहां जब जा रहा था एयरपोर्ट से मैं उतरा, And somebody came and shook my hand there and said, you know, as soon as I got out of the airport. और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला किसी ने मुझसे हाथ मिलाया, And introduced himself. अपना परिचय उसने कराया And he led me to the car. और फिर मुझे वो गाड़ी की तरफ ले गया। When I went to the car, I just put my suitcase and I sat in the car. तो जब मैं कार के पास पहुंचा, मैंने अपनी अटैची गाड़ी में रख दी, वहां बैठ गया। And he went and he started driving. और फिर उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। Now this man, I had never seen him driving. He had never driven me before.
अब ये जो व्यक्ति था, इसे मैंने पहले कभी गाड़ी चलाते हुए देखा नहीं था और उसकी गाड़ी में पहले कभी बैठा भी नहीं था। Sitting for the first time in his car. पहली बार मैं उसकी गाड़ी में बैठ रहा था And the way he started driving, और जिस तरीके से उसने गाड़ी चलाना शुरू किया, he just started driving. I did not have confidence. और जैसे ही उसने गाड़ी चलाना शुरू किया तो मेरा भरोसा उस पे से उठ गया You know, from the look, I did not think that he is a good driver. और उसको देखकर लग रहा था कि ये गाड़ी अच्छी नहीं चलाता। So very politely, I told him, तो बड़े ही नम्र स्वभाव से, बड़ी नम्रता से मैंने उससे पूछा I said, can I try your car? कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी चला I सकता didn't हूँ? want to say, I want to drive. You do not know how to drive. मैं ये नहीं कहना चाहता था कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती नहीं तो मुझे don't- चलाने दो, ये मैं नहीं कहना चाहता Can था। I try your car? Your car is a nice car. लेकिन मैंने बड़े ही अच्छे से ये कहा कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी, क्या मैं चला सकता हूँ? The guy was very polite. उस व्यक्ति ने बड़े ही नम्रता के साथ उसने भी जवाब दिया। I said, sure, you can try. उसने कहा हाँ, तुम चला सकते I हो। stopped it by the roadside and got out of the car, and I went out, and I drive a car, so I'm a good driver. तो सड़क के किनारे उसने गाड़ी रोक दी और मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, तो फिर मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया। I have confidence upon my own driving. मेरी खुद की गाड़ी चलाने की जो प्रतिभा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। I have driven cars for several years. कई सालों से मैंने गाड़ी चलाता आ रहा हूँ, I know I can do well. तो मुझे पता है मैं अच्छे से चला सकता हूँ। The driver got out of the car, went to the other side, and I got into the driver's seat. तो वो व्यक्ति जो पहले गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा और मैं ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। And I started driving, being very confident upon myself. और फिर मैं बड़ा ही अपने ऊपर भरोसा रख के गाड़ी चलाने लगा। Now, as soon as I came to the crossroad, और जैसे ही मैं चौराहे पर पहुंचा I saw, like, I looked to him and says, which direction? और फिर मैंने उनकी तरफ मुड़कर पूछा, अब किस तरफ मुड़ना है बताओ। The battery on my phone was dead. मेरे फोन की बैटरी उस समय खत्म हो गई So थी, there was no GPS. तो उस समय जीपीएस नहीं था। So I had to look to him, like, tell me how to go, where to go, which तो way? फिर मैंने उनसे कहा बताओ बताओ अब कहाँ मुड़ना है। And then he said, left and right and left. He started giving me the direction. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो रास्ता बताता रहा कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। Then we started getting into a smaller road. फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता छोटा होने लगा And there are many crossroads there. और उसके बाद और भी बहुत सारी रास्ते मुड़ते थे। And every time I'm looking at him and asking for the direction. और जब भी ऐसे मुड़ने की जगह आती थी मैं उनकी तरफ मुड़कर उनसे पूछता था, अब And he बताओ कहाँ मुड़ना है। started telling me that, oh, when you go a little further, you will find some humps there. और फिर उन्होंने बताया अगर आगे जाओगे तो फिर एक स्पीड ब्रेकर आएगा। If you go this way, you won't find a good road. But if you go left side, you can find a good road. फिर उसने ये भी बताया कि अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, उधर जाओगे तो वहाँ सड़क अच्छी है। And it started getting dark. और फिर अंधेरा होने लगा। And he told me, sir, you will have to a little bit drive a little carefully because this road is not very safe. और फिर उन्होंने कहा कि श्रीमान अब आपको बड़ा अच्छे से चलाना पड़ेगा, सचेत रहकर, क्योंकि ये जो रास्ता है वो सुरक्षित नहीं है। I looked at him and said, wow, so you have driven on this road? तो फिर मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि आपने कभी इस रास्ते पर गाड़ी चलाई है? How long you have been driving? और मैंने उनसे पूछा कितना समय हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? I said, I have been driving for over 15 years. और उसने मुझे बताया कि पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। Oh, I did not know that. मुझे ये पता नहीं था। Then I said, have you driven before in this road? तो मैंने उनसे कहा कि इस रास्ते पर कभी तुमने गाड़ी चलाई जिसके ऐसे- बारे में तुम बता रहे हो? Sir, I have driven on this road 1,000 times. और उन्होंने कहा श्रीमान इस सड़क से तो मैं हजारों बार जा चुका हूँ। So he is saying that he's a driver for last 15 years and he has experience. और ये व्यक्ति कह रहा था कि पिछले 15 सालों से गाड़ी चला रहा है, इसको ना- अनुभव है। Not only he has driven, but he has driven that road for over 1,000 times. It may not be 1,000 times, but like that, several times. और उसने ये सिर्फ यही नहीं कि वो पिछले कई समय से गाड़ी चला रहा है, लेकिन ये जो रास्ता जिसने उसने बताया कि खतरनाक है, थोड़ा अच्छे से चलाना पड़ेगा, इस पर भी कई हजारों बार उसने ऐसे गाड़ी वहां पर चलाई होगी। And as I was struggling to drive on that road and that new road which I did not know, और जब ये नया रास्ता था मुझे पता नहीं था और यहाँ पर चलाने में मुझे गाड़ी मुश्किल हो रही थी, he looked at me उसने मेरी तरफ देखा and he said, sir, और उसने कहा श्रीमान, you're driving well, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, but can I help driving? लेकिन क्या मैं आपकी गाड़ी चलाने में थोड़ी मदद कर सकता हूँ? You know, I knew that I was struggling. और मुझे पता था कि मुझे मुश्किल हो रही है I गाड़ी was चलाने में, struggling with direction.
मुझे बार बार पूछना पड़ रहा I था was struggling in that road condition. रोड की हालत कैसी है, इसके लिए मुझे मुश्किल हो रहा था गाड़ी चलाने में। I wear a specs and there were cars coming from the other side. There was reflection. और मुझे चश्मा भी लगा हुआ है, तो सामने से आती हुई गाड़ियों की रोशनी पड़ रही It थी was getting late. और रात भी हो रही थी, अंधेरा हो रहा So था। I had several struggles. तो कुछ ये सब मुश्किलें मुझे हो रही थी And almost I had hit somebody. और लगभग ऐसा हुआ कि बस किसी को ठोक ही देता। I told him, like, I thought it's wise for me to give that steering wheel to the other person. और फिर मैंने कहा कि ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, बुद्धिमान की बात होगी कि मैं ये गाड़ी अब किसी और को दे दूं चलाने के He लिए। started driving. फिर उसने चलाना शुरू To किया my surprise, और मुझे आश्चर्य हुआ इस बात से। he drove much better than me. मुझसे बहुत अच्छी गाड़ी उन्होंने चलाई। And he was, the amazing thing is that he never looked at me and said, "Sir, with direction," which I was doing it to him several times. अच्छी बात ये थी कि अब जब ये गाड़ी चला रहे थे तो मेरी तरह जैसे बार बार मैं मुड़कर पूछ रहा था कि कहाँ मुड़ना है बताओ, इनको मुझसे पूछना नहीं पड़ा। He had so much of confidence upon himself. क्योंकि इस व्यक्ति को अपने ऊपर इतना ज्यादा हियाव था, He never asked anybody. उसने किसी से पूछा नहीं। He slowed down where he had to slow down. उसे पता था कहाँ गति धीमे करनी है, He वहाँ had to कर ली। take the turn. When he had to take the turn, जहाँ मुड़ना था उसे पता था it was a smooth drive. और वो बड़ा हम आराम से वहाँ पर हम पहुँच गए। I had not slept for several nights that time. और उस समय मैं रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहा था। So, you know what I said before I sat there, I said, I was not very sure of his driving, so I told him, like, I don't want to sit in the front seat, I'll go in the back seat. तो मैं उनकी ड्राइविंग के बारे में जब सुनिश्चित नहीं था, मैंने ये कहा कि मैं सामने की सीट पर नहीं लेकिन पीछे जाकर बैठूंगा। But I became so confident upon his driving, लेकिन फिर जब मुझे इतना हियाव हो गया कि वे बड़े अच्छे से चला रहे हैं, I started falling asleep तो फिर मैं आराम से because सोने लगा। I मुझे was नींद आने already लगी tired. क्योंकि मैं पहले से ही थका हुआ था। I do not realize how long I had slept, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया, but I woke up to a jerk in the car. लेकिन मैं तब उठा जब एक झटका लगा। And I woke up and said, "What happened?" और फिर मैं उठा और मैंने पूछा क्या हुआ। And he said, "Oh, nothing, sir. There was a truck that came in the front and that light was so strong and it looked like he's going to hit us, so I just swerved." और उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी, मुझे लगा सीधा आकर टक्कर मार देगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैंने ब्रेक लगा He दिया। said, "I'm sorry, but you can sleep now." और उन्होंने कहा कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा इस असुविधा के लिए, आप अब सो सकते हो। I slept again. मैं फिर से सो गया। And then sometime, once a while, he will swerve in and I will have some jerk and shake and I will wake up. और बीच बीच में जब गाड़ी इधर उधर मोड़ रहे थे तो मैं थोड़ा सा हिल रहा था, थोड़े झटके भी लग रहे थे, तो नींद खुल जा रही थी। At one point of time, he said, "Sir, wake up, we have come to the place." और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि श्रीमान उठ जाइए, जहाँ पहुँचना था हम आ गए हैं। 4.5 hours, I did not realize how we reached our destination. 4.5 घंटे के इस समय में मुझे पता ही नहीं चला कब हमारी मंजिल हम I तक हम thought पहुंच to गए। myself, मैंने अपने आप में ये सोचा, if I had driven the car, अगर मैं गाड़ी चला रहा होता I think we wouldn't have reached there in 4.5 hours or 4 hours. मुझे नहीं लगता कि 4.5 घंटे में हम वहां पहुंच पाते। It would have taken probably 8 hours. कम से कम 8 घंटे तो लग ही जाते। It would have taken a lot of strain on me. और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक तनाव सा रहता, ये भी हो सकता I था। do not know if I had hit somebody. मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं गाड़ी चलाता तो किसी को ठोक देता या नहीं। The driving may not have smooth like how he drove. और जब गाड़ी चलानी होती तो शायद ऐसे नहीं चला पाता जितना स्मूथ उन्होंने चलाया था। But because he was an experienced driver, लेकिन क्योंकि उनका अनुभव था गाड़ी and चलाने में, he had traveled that way several times, और उस रास्ते पर कई बार उन्होंने गाड़ी चलाई है, and my willingness to submit to his driving, और मेरी ये जो इच्छा थी कि इनकी ड्राइविंग करने पर मैं निर्भर हो जाऊं, my travel becomes smoother, इसकी वजह से मेरी ये जो यात्रा थी वो आसान बन गई, it became safer, सुरक्षित बन गई, and it reached me to the destination on time. और जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं समय से पहुंच सका। We all are in life's journey. हम सब जीवन की एक यात्रा में हैं। All of us
are not only in single journey, but in several times we take journeys to various destinations. हम सब हमारे जीवन में सिर्फ एक यात्रा में नहीं लेकिन बहुत सारी यात्राओं में जाते हैं। Many of us, we have started a destination to our career. बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक यात्रा शुरू की है। Many of us, we have started our destination in our financial life. हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आर्थिक जीवन में एक यात्रा शुरू की है। Many of us, we have started a journey in our married life. हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक यात्रा शुरू की है। Every one of us we are running, we are taking a journey to a destination in various spheres of life. हम सब अपने जीवन में एक मंजिल पर जा रहे हैं अलग अलग यात्राओं में। And all of us, we think that I want to make my own life. और हम सब यही सोचते हैं, यही सोचना भी चाहते हैं कि मैं अपना जीवन खुद बनाऊंगा। I know where I want to go and I want to go there. मुझे पता है कहाँ जाना है और मैं वहाँ जाऊंगा। And many of us, maybe we are overconfident. Some of us we are confident and we know we can make it. Some of us are less confident. हम में से कुछ लोगों को हियाव होता है कि हम ये कर लेंगे, कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा होता है और But कुछ लोगों को कम भी होता है। Many of us, when we look to our past, we know that we had treaded many journeys before and the journeys had never been smoother always. लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं और हमारी यात्राएं सफल नहीं रही हैं। We have gone through shakes and jerks. हम ऐसे समय में आए हैं जहां हमें झटके लगे हैं। We have gone through tough times. हम मुश्किल समयों से होकर गुजरे हैं। Many of us, we have realized that several times we have got lost on the way. हमने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि हम मानो रास्ते में कहीं खो गए हों। Many times we realize that we did not want to give the driving steering wheel to somebody else, but we want to be on the driving seat. बहुत बार हम ये चाहते हैं कि अपने जीवन की इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो हमारे हाथ में रहे, दूसरे के हाथ में ना जाए। This is not only with us. It might have happened with David's life. ये सिर्फ हमारी कहानी ही नहीं है लेकिन दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ Many होगा। times he might have gone through a situation like that. बहुत बार वो भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा होगा। But through his life journey, many journeys that he had taken, he had realized enough that if he becomes in the driving seat, life cannot be as smoother as when God becomes the driver. लेकिन अपने जीवन की बहुत सारी यात्राओं के अनुभव से वो ये जानता है कि अगर अपनी जीवन की गाड़ी वो खुद ही चलाएगा तो इतनी आसान यात्रा नहीं होगी जितना तब होगी जब परमेश्वर चलाएगा। So when he became the king and the emperor of Israel, तो जब वो इज़राइल का राजा और शासक बन जाता है, after leading several years, पिछले कई सालों से जब उसने लोगों की अगुवाई की है, after taking so many journeys, बहुत सारी यात्राओं में चलने के बाद, after leading so many victories, बहुत सारी विजय हासिल करने के बाद, after launching so many challenges, बहुत सारी चुनौतियों से उभरने के बाद, he is realizing that there is no greater leader and no greater driver of life than God himself. वो इस बात का अनुभव कर रहा, इस बात का अंगीकार कर रहा है कि परमेश्वर से ज्यादा अच्छा अगुवा या अच्छा जीवन चलाने वाला And कोई he's नहीं है। not saying that I'm the shepherd, but he's saying the Lord is my shepherd. वो ये नहीं कह रहा कि मैं चरवाहा हूँ, वो कह रहा है कि परमेश्वर चरवाहा है। He's not saying that I'm the boss of my life, I'm the decision maker of my life, but he is saying that God is the decision maker of my life. वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने जीवन के फैसले खुद लेता हूँ, अपने जीवन का प्रभु मैं खुद हूँ, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर है। And because he is the leader, he has traded this way several times. अब क्योंकि वो अगुवा है, इस तरीके से वो कई बार चला है And he knows how to lead my life journey. और वो जानता है कि मेरे जीवन की यात्रा को वो कैसे He चलाएगा। knows how to give me victory. वो जानता है मुझे विजय कैसे देगा। He knows how to give me success. वो जानता है मुझे सफलता कैसे देगा। He knows how to save me from the jerks and the turn of life. वो जानता है कि जीवन में आने वाले झटकों से और जब जीवन मोड़ लेगा तो उनसे कैसे And बचाना this is है। very interesting that he is saying God as my leader and God is my guide. ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा अगुवा है, मेरा मार्गदर्शक है। When I was thinking about what is the leader, how does he lead and how does he guide? जब मैं सोच रहा था कि अगुवा क्या होता है, कैसे वो मार्गदर्शक करता है, कैसे संचालन करता I है, was remembering one instances that when I was about
4 or 5 years old. जब मैं 4-5 साल का था तो मुझे एक घटना याद है। We come from a very small town, हम एक बहुत छोटे से कस्बे से आते हैं and we had a farmland. और हमारे वहाँ पर खेत हैं We had many small farmland. और बहुत छोटे छोटे से हमारे खेत हैं। And when we were, I remember when I was about 5 or 6 years old, or my brother was about 4 or 1 year younger to me. और जब मैं 5-6 साल का था मुझे याद है और मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा था उस समय। One day my father told us that he is going to take us to our farm. तो एक बार हमारे पापा ने हमसे कहा कि वो हमें हमारे खेत ले जाएंगे He had many paddy fields, और बहुत सारे वो rice fields. चावल के खेत थे। And so we were young. हम छोटे थे, He took us there, वो हमें वहाँ पर लेकर गए and there were many paddy fields, rice fields. और बहुत सारे वहाँ पर धान की खेती हो रखी थी, चावल की खेती हो रखी And थी। he told us that way out there, there's you see the tree there? और उन्होंने दूर से दिखाया, तुम्हें वो पेड़ दिखाई दे रहा है? You know where the tree is, that rice field belongs to us. और उन्होंने कहा कि जहाँ वो पेड़ है वहाँ जो चावल का जो खेत है वो हमारा है। And there are 3 more rice fields, those belongs to us. और वहाँ 3 और खेत है वो भी हमारे हैं। Now we are small, we are 5 years old, 6 years old. हम छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, And we had small tiny feet. हमारे छोटे छोटे पैर थे। And my father is saying, we are going to go there to that rice और field. हमारे पापा ने कहा कि हम वहाँ जो हमारा जो चावल का खेत है वहाँ जाएंगे। Now as we are going out there, और जैसे हम वहाँ जाने लगे we see that there is a lot of rice field has a lot of water and mud. तो हमने देखा कि वहाँ चावल के खेत में बहुत कीचड़ है, बहुत पानी भरा हुआ है। You cannot walk in the field. आप खेत के अंदर चल नहीं सकते। You had to look for that what do you call that one? Look at the you have to look for edges to go up there. तो तुम्हें वहाँ पर छोटी छोटी पटरियाँ देखनी होगी, जहाँ सूखी जगह है वहाँ किनारे किनारे निकल जाओ। And we did not know how to go there. हमें पता नहीं था जाना कैसे है। So my father said, तो मेरे पापा ने you कहा, know, we looked at him and said, how are we going to go there? There is no way, there is no path. और फिर हमने पापा को देखकर कहा वहाँ जाएंगे कैसे, जाने का तो कोई रास्ता है My नहीं। father said, just follow me. पापा ने कहा बस तुम पीछे पीछे आओ। Okay, we are going to follow the daddy. हमने कहा ठीक है अभी डैडी के पीछे चलेंगे। So daddy goes in that edges. तो फिर पापा वो जो एजिस जो बने हुए थे, किनारे बने हुए थे, उसके ऊपर चलने लगे। So as small kids, छोटे बच्चे के लिए we are going to the destination, to the rice field, अब हम वहाँ चावल के खेत में जाने वाले हैं, but we are not looking at the rice field. लेकिन हम खेत को देख नहीं रहे। Where are we looking at? हमारी नजरें कहाँ हैं? We are looking at my father's feet. पापा कहाँ कहाँ पैर रखेंगे हम वो देख रहे हैं। Wherever he is putting the feet, wherever he is going, we are looking into his legs, and wherever putting the steps, we are putting the steps out there. हमारी नजरें पापा के पैरों पर थी कि जहाँ पापा पैर रखेंगे हम भी वहीं रखेंगे। He is leading us the way. वो हमें रास्ता दिखा रहे थे। And we are small, we are trying to balance ourselves and walking out और there. हम छोटे थे तो वो छोटी छोटी जो जगह होती है, पटरियां सी होती हैं खेत में, अपने And आप को उसमें wherever- बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। Wherever there's difficult, my father would say, come on, be careful here. There is a stone here in this place. और फिर जब भी थोड़ा अड़चन आती थी पापा बोलते थे बेटा यहाँ ध्यान से चलना, यहाँ पर पत्थर है Please be careful, that is slippery there. और ध्यान रखना यहाँ पर फिसलने वाली जगह है। So we are listening to his voice, तो हम पापा की बात भी सुन रहे थे, looking at his feet, उनके पैरों को देख रहे थे and we are walking in that small edges of that. और वो छोटे छोटे जो किनारे थे, जो पटरियां सी थी, उन पर हम चल रहे थे। We were going to the direction leading of my father. पापा जैसे हमें चला रहे थे हम वैसे चल रहे थे। This is the same way. ऐसा ही तरीका होता When है God leads, जब परमेश्वर हमें चलाता है। God says, we are going to the destination there. परमेश्वर कहता है कि हम वहां जाने वाले हैं। Yes, we are going to the destination. हाँ सही बात है, मंजिल तक जाने वाले But हैं, Daddy, God, how are we going to go there? लेकिन परमेश्वर हम वहां पहुंचेंगे कैसे? Well, you see that? We are going to go there. Just तुम्हें- follow me. तुम्हें वो दिख रहा है, हम वहां जाएंगे, बस मेरे पीछे चलो। It's very important not to look at the goal all the time, but look at the feet of God, where He is putting the feet. ये जरूरी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को देखते रहें, लेकिन परमेश्वर कहाँ कदम धर रहा है वो आपको देखना है। I remember a statement that Dr. Jonathan made one time. मुझे याद है एक बात जो डॉक्टर जोनाथन ने एक बार कही थी, You know, when God calls somebody, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है He tells that person where to start
and where to go. परमेश्वर उसे बताता है कहाँ से शुरू करना है और जाना कहाँ है। He tells you this, the starting point and the ending point. आपको बताता है शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ होगा। But he doesn't tell you in between what is going to happen. लेकिन बीच में क्या होगा, बीच के रास्ते में परमेश्वर बताता नहीं है। In between, he wants you to follow him and to be dependent upon him. इस बीच के रास्ते में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पीछे चलें और उस पर ही निर्भर हों। So following God is very important. तो परमेश्वर के पीछे चलना बहुत जरूरी है। Hearing his word, उसके वचनों को सुनना, hearing God's direction, परमेश्वर के निर्देशों को सुनना, seeing his footstep उसके कदमों की छाप देखना is very vital for our life. हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Then on the while we were following my daddy, और जब हम उस समय हमारे पापा के पीछे चल रहे थे, I do not know if you know, but there are some cuts there that they want water to flow to the other field. और फिर आपको पता होगा कि जैसे एक बीच में थोड़ी सी जगह बना देते हैं जिससे एक खेत से दूसरे खेत में पानी जा सके। My father had big legs. मेरे पापा के पैर तो बड़े थे He हमसे, just jumped out. तो वो तो कूद गए, We are stuck. हम अटक गए। Small kids. छोटे बच्चे थे, I do not know how to go there. हमें पता नहीं वहां जाएंगे And I'm कैसे। just waiting there, and my father is the other side, and we are in this side. पापा तो दूसरी तरफ है, हम इंतजार कर रहे हैं। And we're saying, Papa, we're stuck. और हमने कहा पापा हम फंस गए। He says, come on, jump. उन्होंने कहा आओ कूदो। No, I'm going to fall. पापा नहीं, मैं गिर जाऊंगा, I'm going to get stuck. मैं यहाँ फंस जाऊंगा, अटक जाऊंगा, I'm going to fall to the ditch. मैं ये जो बीच में जो गड्ढा है इसमें गिर जाऊंगा। I don't want to go. मैं नहीं जाना चाहता, I don't have courage to go. मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जाने की। Then my father just looked at us, फिर पापा ने हमें देखा, and he would say, okay, you can put your feet on that small stone फिर पापा ने बताया कि वो जो छोटा सा पत्थर है उसके ऊपर पैर रखो, and hold my hand. मेरा हाथ पकड़ो Slowly, very carefully, put your next foot on the other stone. और बड़े ध्यान से बड़े आराम से अपना दूसरा पैर फिर दूसरे पत्थर पर रखो, But don't leave my hand. लेकिन मेरा हाथ मत छोड़ना। And he says, slowly he will put. Now put this feet on the other stone. He said, put this feet on the other feet on the other stone. और उन्होंने कहा कि इस दूसरे पैर को दूसरे पत्थर पर रखो And here, come out here. और फिर आओ इधर आओ, इस तरफ आओ। Okay. और Come फिर this उन्होंने way. हाथ पकड़कर खींच He लिया, just pulled us out. हमें हाथ पकड़कर खींच We were लिया। in the other side. हम फिर दूसरी पार पहुंच गए। How was the guiding? ये जो मार्गदर्शन था, It संचालन था, was कैसा not था? only the leading. ये सिर्फ अगुवाई ही नहीं था। Not only that we were following God's footsteps. ऐसा नहीं कि बस हम परमेश्वर के कदमों की छाप पर चल रहे हो। Even when we are following God's footsteps, जब हम परमेश्वर के कदमों के पीछे पीछे चलते हैं, there are ditches on the way that makes us stuck. रास्ते में ऐसे गड्ढे आते हैं जो हमें रोक देते हैं, अटका देते हैं। And we thought, God, we were following you, फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम तो आपके पीछे चल रहे थे, but why am I stuck? लेकिन मैं अटक क्यों गया? You know, God says God says that, okay, come over, jump over. परमेश्वर कहता है कि ठीक है, अब कूद जा। Fear comes in our life. डर हमारे जीवन में उस समय आ जाता I है, cannot do it. मैं नहीं कर सकता, I cannot go across. मैं इसे पार नहीं कर सकता, I cannot be successful. मैं सफल नहीं हो सकता, I'm going to get stuck. मैं यहाँ फंस जाऊंगा, I'm going to fall down. मैं गिर जाऊंगा। God says, no. परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, He says, that is the time that you can say, Papa, यही वो समय है जब आप कह सकते हैं पापा I am stuck. मैं फंस गया हूँ, I have fear. मुझे डर लग रहा I है, do not know how to go. मुझे नहीं पता उस पार कैसे You know, जाना it's है। wonderful, our God is, that He says, call unto me and I will answer you anytime. कितना अद्भुत है कि हमारा परमेश्वर ये कहता है कि तू मुझे पुकार किसी भी समय, मैं तुझे उत्तर दूंगा। He is as if He is waiting for your voice. और ये कुछ ऐसा है कि मानो वो आपकी आवाज के लिए इंतजार कर रहा He हो, is waiting for your call. आपके बुलाने का वो इंतजार कर रहा है। As soon as you say, give a distress call, Papa, He is just right away there, right out here, and says, come on, hold my hand. और जैसे ही आप उसको पुकारते हैं, कहते हैं पापा, वो उसी समय आ जाता है, कहता है मेरा हाथ पकड़ ले। And He tells you every step where to put your feet and where not to put your feet. और वो आपको हर एक कदम बताता है कहाँ पैर रखना है, कहाँ And नहीं where रखना। you are putting your feet, और जहाँ आप अपना पैर रख रहे हैं, when you are putting your feet, He still holds onto your hand. जब आप अपना पैर वहाँ रख रहे हैं, वो आपका हाथ पकड़
पकड़ लेता है, giving you a confidence that you do not fall off. आपको ये हियाव देने के लिए कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं। Our God is an awesome God. हमारा परमेश्वर एक अद्भुत He's परमेश्वर a है, wonderful God. ये वो बड़ा ही बेहतरीन He's a परमेश्वर है, careful God. वो हमारी परवाह करने He's वाला caring परमेश्वर है, God. वो परवाह करने वाला है। You know, he has had several experience in leading humanity for over generations and generations. मानव जाति की कई पीढ़ियों से पीढ़ियों तक अगुवाई करने का परमेश्वर का अनुभव रहा है। He had led people stronger and weaker than you. उसने आपसे ज्यादा बलशाली और आपसे ज्यादा कमजोर लोगों को भी चलाया है। He has led people those who are smarter and fuller than you. आपसे ज्यादा बुद्धिमान और आपसे ज्यादा निर्बुद्धि लोगों को भी परमेश्वर ने चलाया है। He has led people those who are richer and poorer than you. परमेश्वर ने ऐसे लोगों की अगुवाई की है जो आपसे धनी और आपसे गरीब भी रहे He हैं। has led people, that more difficult people and the more easy people than you. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चलाया है जो बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं और उन लोगों को भी चलाया है जो बहुत सुलझे हुए होते If he हैं। has led several in this world, अगर उसने बहुत सारे लोगों की अगुवाई की है इस दुनिया में, those who put their trust on him, जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, how well he can lead you, तो फिर सोच कर देखिए कि आपकी अगुवाई वो कितना अच्छा से how करेगा, well he can guide you. कितना अच्छे से आपकी अगुवाई करेगा। But it depends. Do you put your trust upon God? लेकिन ये निर्भर इस बात पर करता है कि क्या आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। Do we put our trust upon him in every areas of our lives? क्या हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। It's very important. ये बहुत जरूरी सवाल If है। you want a smoother and a easier life, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़ा ही आराम से चले, सरल हो, like that day that when I was very tired but I still wanted to be in control. उस उस दिन की तरह जब मैं बहुत थका हुआ तो था, लेकिन चलाना अपने हिसाब से ही चाहता But था। when I put my confidence upon the driver who has driven several days, several times and several years of experience, then it gave solace to me. My journey becomes smoother. लेकिन जब मैंने अपना नियंत्रण उस व्यक्ति को दे दिया जिसका अनुभव मुझसे ज्यादा था, तो मेरी यात्रा आसान बन गई। It's wonderful that when you put our trust upon God. ये बहुत ही अच्छा होता है जब अपने भरोसे को हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। Trust God upon for our finances. अपने आर्थिक जीवन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। Trust God in our emotional life. हमारी भावनाओं के जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करें। Trusting God in our social life, in our profession. हमारे कामकाज में, हमारे व्यवसाय में, हम सामाजिक जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करें। Trusting God in our relationship. हमारे रिश्तों में परमेश्वर पर भरोसा करें। God knows the way. परमेश्वर को रास्ता पता है, He knows better. उसे अच्छे से पता है। My encouragement, the word of God encourages us to put our trust upon him. परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि अपना भरोसा हम उस पर रखें। Amen. आमीन।